Hello and a very warm welcome. You're watching Times Now with me, Priya Behel. Today, we saw it was a day of mega rallies. Right now, as we speak, just moments ago, Prime Minister Narendra Modi sounded the poll bugle for the NDA in UP. But before that, for almost 4 hours, it was the India Alliance that made a big show of strength and unity at the historic Ramleela Maidan in Delhi. Aam Aadmi Party had claimed that the rally was to protest Arvind Kejriwal's arrest, and his wife, Sunita Kejriwal, issued yet another spirited statement on her husband's behalf. On the other hand, the Congress is said to have made it clear that the rally was not for any single person. Rather, it was to fight match fixing of the elections by the BJP. The battle was led from the front by the wives of arrested opposition leaders. Sunita Kejriwal was joined by Kalpana Soren, who is the wife of Hemant Soren. And also present were the wives of Sanjay Singh and Satyendra Jain, both AAP leaders who are currently behind bars. Listen in to Sunita Kejriwal and Kalpana Soren. प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? आपके केजरीवाल शेर है, शेर। आज ये उमड़ा ऐतिहासिक इस मैदान में सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से तानाशाह ताकतों ने अपना कदम बढ़ाया है, उसको अंत करने के लिए ये संकल्प सभा यहाँ पे आमंत्रित हुई है, जिन्होंने एक एक करके हमारे संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है। Using the occasion, Sunita Kejriwal also announced 6 guarantees on behalf of the Delhi Chief Minister. They included uninterrupted power, free electricity for the poor, government schools in all mohallas, mohalla clinics everywhere, MSP for farmers on the Swaminathan formula, and full statehood for Delhi. She also apologized to the India allies for not having spoken to them before giving the guarantees. Interestingly, a Kejriwal poster that was placed right in front of the stage was removed shortly before the rally and the speeches began, allegedly at the Congress's behest. मैं आज ये ऐलान करने के लिए अपने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों से माफी मांगता हूं, क्योंकि ये ऐलान करने के पहले मैंने उनसे उनकी अनुमति या सहमति नहीं ली। जेल में हूं, इसलिए सहमति लेना संभव नहीं था। उम्मीद करता हूं कि किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी। ये सभी 6 गारंटी हम 5 साल में पूरी करेंगे। इसका पैसा कहां से आएगा, इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। The other members of the India bloc also took the opportunity to air their grievances. Akhilesh Yadav, Tejasvi Yadav and Farooq Abdullah were bullish about India Alliance and tore into the BJP. हम बोलते हैं मोदी जी की गारंटी वैसी ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है। 2-4 बार इस्तेमाल करोगे और वो गारंटी जो है खत्म हो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है। और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। और जो लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर रहे हों, उन्हें सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए
अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। हमें सब इकट्ठे चलना है। मुझे बहुत खुशी हुई जब महबूबा जी यहाँ तशरीफ लाई और उन्होंने साफ कहा इंडिया गठबंधन को हमने मजबूत करना है, उसमें हम सब आपके साथ हैं, रहेंगे जब तक जिंदगी है और दम है। हम लोग इस गठबंधन को छोड़ने वाले नहीं हैं। And after all these leaders came the turn of Rahul Gandhi. He accused the BJP of match-fixing the elections and fear-mongered on the BJP winning. Rahul said they would change the constitution and then the nation would burn. ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। केजरीवाल जी को, सोरेन जी को ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। On the other hand, it was the turn of Priyanka Gandhi Vadra to counter the BJP using Lord Ram's name, with the Ram Mandir wave seemingly coursing through the Hindi heartland and Prime Minister himself referring to it today when he kick-started his party's campaign in Meerut. Priyanka Gandhi equated the BJP with Ravan. मुझे लगता है कि वे कर्मकांड में उलझ गए हैं। मुझे लगता है कि वे दिखावे में लिप्त हो चुके हैं। इसीलिए मैं आज यहाँ खड़े होकर उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि वो हजारों वर्ष पुरानी गाथा क्या थी और उसका संदेश क्या था। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, भगवान राम के पास सत्य था।